ਹੈਲੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ? ਚਾਰਜ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਸ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਐਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, then ਕੀ ਹੋਏਗੀ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ M ਇੰਟੂ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ? E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q ਅਪੋਨ R ਸਕੁਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ P ਓਵਰ R ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ A ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਹੀ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਡਾਇਪੋਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਂਥ ਆਫ ਡਾਇਪੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? A, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ, ਦੈਨ A ਸਕੁਅਰ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ A ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਇਆ? E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ P ਅਪੋਨ R ਕਿਊਬ। ਨੈਕਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਦੇਖਿਆ। ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਕੀ ਸੀਗਾ? 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ 2PR ਅਪੋਨ R ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ A ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਅਗਰ ਲੈਂਥ ਆਫ ਡਾਇਪੋਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਲਵਾਂਗੇ ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ 2P ਅਪੋਨ R ਕਿਊਬ। ਨੈਕਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਪੋਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਮੀਨਸ ਟਾਰਕ, ਦੈਨ ਉਹ ਟਾਰਕ ਕੀ ਸੀ? PE ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਔਰ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਡਾਇਪੋਲ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਆ ਟਰਮ 2A ਹੈ ਇਹ ਲੈਂਥ ਆਫ ਡਾਇਪੋਲ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਫਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਫਾइंड आउट करना? इलैक्ट्रिक फील्ड E कैलकुलेट करना। विच मस्ट बैलेंस द ड्यूट्रॉन ऑफ मास। सानू की दिता होया? मास ऑफ ड्यूट्रॉन 3.2 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। टेकन दैट G की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सानू इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने लिए क्या? सानू मास दिता। सानू ये पता ड्यूट्रॉन की हुंदा? हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है ड्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होंगे। फर्स्ट होंगे हाइड्रोजन, सैकेंड होंगे ड्यूट्रॉन, थर्ड होंगे ट्रिट्रॉन। की हुंदा? एटॉमिक नंबर सारिਆਂ ਦਾ ही 1 हुंदा, बट मास नंबर च चेंज हुंदा। इस दा मास नंबर 1, इस दा मास नंबर 2 और इस दा मास नंबर 3। ठीक है, दैन ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਦੈਨ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਚਾਰਜ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਏਗੀ 1.6 ਇੰਟੂ 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ। ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? Q ਇੰਟੂ E। ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ M ਇੰਟੂ G। अगर सानू मास दी है, एक्सलरेशन दी हुई है, दैन ये फॉर्मूला। दोनों फोर्सिस ने दोनों इक्वेट किया। सॉरी, mg इज इक्वल्स टू Q इंटू E। दैन इतों असी की है E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। बाकी सब M पता है, G पता, Q पता है, E नू एज अ सबजैक्ट लै लो, mg ओवर Q। दैन वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दो। M की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻27। G की वैल्यू हैगी है 10 ओवर Q है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसनू सॉल्व करन दा सेम पहलां दी तरह 3.2 नू 1.6 नाल डिवाइड कर दो इंटू 10⁻⁻27। हाँ की है 10⁻1। बेस सेम होंगे, दैन पावर्स ऐड हो जांदियां। नीचे वाली पावर है डिवाइड होया, इसदा मतलब ऊपर जाके की हो जाएगी? सबट्रैक्ट। ठीक है जी, जो सबट्रैक्ट होएगी माइनस ही, ऊपर जाके भी माइनस होनी सी, माइनस माइनस प्लस। इनू सॉल्व करोगे 2 इंटू 10⁻⁻7
और इलैक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स की होंगे न्यूटन पर कूलम। नैक्सट सैकेंड न्यूमैरिकल है इलैक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मूवमेंट 4 × 10⁻⁻9 कूलम पर मीटर इज अलाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री। मीनस डायपोल मूवमेंट देती है, डायपोल मूवमेंट का सिंबल P कितनी है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। एंगल दिता यानी थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। नैक्सट विद द डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, तो वो असी क्या इलैक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया होया आ डायपोल पिया इलैक्ट्रिक फील्ड नाल डायपोल एंगल बनाता पाया थीटा। दैन असी आ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री लै लिया। विद इलैक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैगनीट्यूड, जो साडे कोल इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड है इहदा सानू मैगनीट्यूड पता है 5 × 10⁴ यानी ई दी वैल्यू कितनी है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैगनीट्यूड ऑफ टॉर्क, की फाइंड आउट करना टॉर्क। टॉर्क लिए की रिलेशन सीगा PE साइन ऑफ थीटा, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो 4 × 10⁻⁹ × 5 × 10⁴ साइन ऑफ थीटा यानी 30 डिग्री। 4 5 20 × 10⁻⁻9 + 4 -5 इंटू साइन 30 कितना होंगे 1/2। सॉल्व करो 2 नाल 10 20 कट होके 10 आ जाएगा 10 × 10⁻⁻5। साइंटिफिक नोटेशन के विच मतलब कि इत्थे पॉइंट है पॉइंट 0 होएगा आ पॉइंट असी अगे शिफ्ट करांगे दैन क्या आ जाएगा 1.0 × 10⁻⁻5 पहला सीगा पावर किधर शिफ्ट पॉइंट किधर शिफ्ट किया टूवर्ड्स लैफ्ट दैन पावर की होएगी +1। ठीक है, अगर असी पॉइंट लैफ्ट शिफ्ट करते हैं दैन पावर की हो जाती है +1, अगर राइट शिफ्ट करते हैं पावर -1। टॉर्क दे यूनिट आपां कीते सी की हुंदे आ न्यूटन मीटर। नैक्सट है थर्ड क्वेश्चन द चार्ज ऑफ +20 × 10⁻⁻9 कूलम एंड -25 × 10⁻�9 कूलम। मीनस दो चार्जिज ने यानी चार्ज का मैगनीट्यूड सेम है की जनरेट करेंगे डायपोल किन्ने डिस्टेंस से पे है 6 मीटर अपार्ट। मीनस दोनों चार्ज एक दूसरे तो 6 मीटर की दूरी पर है। दो चार्ज लगा ले एक -25 ते +25 × 10⁻⁻9। ठीक है, दोनों के विच डिस्टेंस कितना है 6 मीटर। ठीक है, और सानू एक चीज़ होर है कि जो लेंथ ऑफ डायपोल होंदी है वो की होंदी है 2a यानी 2a इज इक्वल्स टू 6 मीटर होया। ए दी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 मीटर। फाइंड द इलैक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना किसी पॉइंट उपर जोड़ा कि 4 मीटर ते फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलैक्ट्रिक डायपोल। हुण डायपोल का सेंटर से ओ मन लैने ये तो की है 4 मीटर उपर है ऑन दी एक्सियल लाइन तो इस तो 4 मीटर है यानी कोई पॉइंट इत्थे होएगा। ठीक है, तो इत्थे असी आ सेंटर तो 4 मीटर डिस्टेंस लैना, इत्थे तक की सीगा 3 मीटर सीगा क्योंकि आ टोटल 2a आ इन्ना ए होएगा तो ए कितनी है साढ़े कोल 3 मीटर, इन्ना साढ़े कोल 3 मीटर है तो अगे आह डिस्टेंस की होएगा 1 मीटर। तो आपां आर्टिकल जब सॉल्व किया सी उदों आपां सेंटर तो उस पर्टिकुलर पॉइंट तक दा डिस्टेंस नूं की रिप्रजेंट किया सी R। ठीक है जी, हुण साढ़े कोल की है R इज इक्वल्स टू 4 मीटर 3 + 1 4 होया ना। तो चार्ज साढ़े कोल की है 25 × 10⁻⁻9 कूलम। क्योंकि आप तो जस्ट मैगनीट्यूड लेना होंगे प्लस है या माइनस है, ये तो जस्ट ये लिए कि चार्ज आ जो किस डायरेक्शन से इलैक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता पाया। दैन जो एक्सियल लाइन रिलेशन है वो यूज़ करो 1/4 पाई ε0 2πr ओवर r² माइनस a² दा स्क्वेयर। ठीक है जी, हुण सानू पता है 1/4 पाई ε0 की वैल्यू कितनी होंगी है 9 × 10⁻⁹ 2 × p यानी डायपोल मूवमेंट p नू कैलकुलेट कर सकते हैं। p नू किद्दां कैलकुलेट करांगे चार्ज डायपोल मूवमेंट का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला की हुंदा p इज इक्वल्स टू Q × लेंथ ऑफ डायपोल।
यानी इत्थे लेंथ ऑफ डायपोल की जगह ते की है 2a, यानी क्यू इंटू 2a। क्यू की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 2a, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है 6। साढ़े को कितनी आ जाएगी 25 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 150 इंटू 10⁻⁻9 और इसनों अगर असी पॉइंट शिफ्ट करांगे 1.5 इंटू 10⁻, 2 अखर शिफ्ट किए हैं, 2 अखर शिफ्ट किए का मतलब की हो गया -9 पहला तो असी लैफ्ट वाल शिफ्ट करांगे तो पावर प्लस आएगी -9 + 2, -9 पहला तो असी 2 अखर शिफ्ट किए +2 की आ जाएगी -7। इत्थे पुट कर दिए 1.5 इंटू 10⁻⁻7। इत्थे आर की वैल्यू पुट करांगे ए दी। आर की वैल्यू की है 4 का स्क्वेयर -3 का स्क्वेयर। वैल्यू सबस्टिट्यूट करने तो बाद सॉल्व किया 4 का स्क्वेयर 16, 3 का स्क्वेयर 9 का स्क्वेयर हो गया। सबट्रैक्ट करके आ गया हूँ 9 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 इंटू 10⁻9 है तो -7 है। सॉल्व करोगे 10⁻2 आ जाएगा। बेस सेम पावर Z नीचे 49, यानी कि बन गया 8100/49। सॉल्व करने तो बाद की आ जाएगा 165.3 न्यूटन पर कूलम। सैकेंड पार्ट सीगा ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो दैन इक्वेटोरियल लाइन का रिलेशन लगावांगे 1/4πε0 P/r² + a² 3/2। वैल्यू सबस्टिट्यूट करो 9 इंटू 10⁻9। P की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की सीगी 1.5 इंटू 10⁻7 इंटू 1.5 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाय R, यानी 4 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर दी पावर 3/2। स्क्वेयर सॉल्व किया 4 का स्क्वेयर 16, 3 का स्क्वेयर 9, दैन 1.5 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे 15 9 ज़ा 135 इंटू 10⁻2 डिवाइड बाय 25 3/2। हुण 25 के फैक्टर्स बनाने की होंगे 5 का स्क्वेयर ऊपर पावर की है 3/2, नीचे वाला 2 ते 2 कट हो जाएगा की रह जाना 13.5 इंटू 10⁻2 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। अगे की आ जाएगा 13.5 इंटू 10⁻2 डिवाइड बाय 125 और इसको सॉल्व करके किया जाएगा 10.8 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस ने 2 इंटू 10⁻7 कूलम एंड 1.0 इंटू 10⁻7 कूलम आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। मीनस 2 चार्जेस ने, दोनों चार्जेस दे विच कितना डिस्टेंस आ 1 सेंटीमीटर का। इनू चार्ज नू Q1 मान लेने, दूसरा चार्ज Q2। ठीक है, यानी Q1 की वैल्यू की होगी 2 इंटू 10⁻7 कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी है 1.0 इंटू 10⁻7 कूलम। दोनों चार्जेस विच डिस्टेंस नू असीं लै लैंदे आ R 1 सेंटीमीटर। हुण स्टैंडर्ड यूनिट की हुंदे आ लैंथ दे मीटर, दैन इनू चेंज कर लो 10⁻2 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी, हुण उन्होंने नैक्सट की बोलिया कैलकुलेट दी मैगनीट्यूड ऑफ फील्ड बाय आइदर चार्ज। मीनस हर एक चार्ज द्वारा कितना फील्ड लग रहा, कितना फोर्स Q1 चार्ज करके कितना इलैक्ट्रिक फील्ड लग रहा, Q2 चार्ज करके कितना फील्ड लग रहा। फील्ड ड्यू टू चार्ज एट Q2 कितना होएगा E इज इक्वल्स टू E1 अज्यूम कर लेने 1/4πε0 Q1 अपॉन R²। then 9 इंटू 10⁻9 1/4πε0 की वैल्यू। Q1 चार्ज कितना 2 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाय 10⁻2 दा स्क्वेयर। नेक्स्ट 9 2 ज़ा 18 इंटू 10⁻9 - 7 2 डिवाइड बाय 10⁻4
2 इंटू 2 4, ठीक है जी। 18 इंटू 10⁻²2 प्लस 4 यानी 18 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਆਏਗਾ 1.8 ਇੰਟੂ 10⁻7 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਫਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਪਾਵਰ +1 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 E2 आ जाएगा 1/4πε0 Q2 अपॉन R²। सारा सेम मैथड नाल सॉल्व करना है। चार्ज कितना Q2 1.0 इंटू 10⁻⁻, सेम वे दे नाल जदों सॉल्व करोगे वैल्यू सबस्टिट्यूट करने तो बाद कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। नैक्सट क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जिज है, 5 है एक तो 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दूसरा क्या है 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों चार्जिज अज्यूम कर ले, के पॉइंट है दूसरा बी पॉइंट उपर है, ठीक है जी। दोनों के विच डिस्टेंस है 2 मीटर, तो दोनों के विच डिस्टेंस असी ले लिया 2 मीटर। फाइंड करना है पॉइंट ऑन दी लाइन ज्वाइनिंग दैम, दोनों ज्वाइन करने वाली लाइन है वाली, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ फाइंड आउट करना जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है 0 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ नहीं पता वो ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ 0। ਦੈਨ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 0 ਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ x डिस्टेंस ਤੇ ਆ। दूसरे वाले पॉइंट तो भी कोई डिस्टेंस होएगा। ਹੁਣ अगर ਇੱਥੋਂ तक ਦਾ डिस्टेंस x है, टोटल डिस्टेंस की है r, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ r माइनस x, सिंपल अलजेब्रा। टोटल डिस्टेंस r है, इन्ना x है, देन बाकी का की रह गया r माइनस x। यानी मैं बोल सकती हूँ ए ओ इज इक्वल्स टू x एंड बी ओ इज इक्वल्स टू r माइनस x मीन्स 2 माइनस x। और दोनों चार्जेस की है Q1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻19, Q2 कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नैक्सट है कि दोनों का हुण देखो इस पॉइंट उपर इलैक्ट्रिक फील्ड असी 0 मन्निया, तो इस पॉइंट उपर टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब कि जिन्ना इस डायरैक्शन दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इस डायरैक्शन दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, दोनों के दोनों इलैक्ट्रिक फील्ड की होंगे इक्वल होंगे, ਤਾਂ ही इस पॉइंट पर इलैक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिथे बोल रही है कि नैट 0 आ, नैट 0 का मतलब टोटल 0, तो मतलब जिन्ना इस डायरैक्शन दे विच लग रहा या जिन्ना इस डायरैक्शन दे विच लग रहा तो टोटल की होएगा 0। क्यों होएगा, जिन्ना इधर वाली डायरैक्शन मैगनीट्यूड आ उन्ना ही इधर वाली डायरैक्शन मैगनीट्यूड होएगा। दैन असी मान लैंने कि E1 इधरली डायरैक्शन अगर E1 लग रहा इधर E2 लग रहा, E1 का मैगनीट्यूड इज इक्वल्स टू E2 का मैगनीट्यूड होएगा, ठीक है। दैन इस चीज़ में अगे सॉल्व करते हैं। E1 का मैगनीट्यूड कितना कढ़ांगे 1/4πε0 चार्ज Q1 अपॉन डिस्टेंस AO दा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 चार्ज Q2 डिस्टेंस OB दा स्क्वायर। 1/4πε0 देखो दोनों साइड ते कैंसल हो जाएगा, की रह गया इधर Q1 ओवर AO दा स्क्वायर, इधर रह गया Q2 ओवर OB स्क्वायर। हुन वैल्यूज पुट करो, Q1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻19, AO की वैल्यू कितनी है x ओवर x स्क्वायर। सेकेंडली Q2 की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और OB डिस्टेंस कितना है 2 माइनस x दा स्क्वायर। हुन दोनों सॉल्व किवें करना, दोनों सेम कैंसल, कूलम कूलम भी कैंसल, की रह जाएगा 5 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 ओवर 2 माइनस x दा होल स्क्वायर। हुण देखो आ 5 ते 20 भी इकट्ठे हो सकते हैं, 5 1 5 5 4 20, 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/2 माइनस x दा होल स्क्वायर। हुण इनू असीं इदां लिख सकते हैं 1/x दा होल स्क्वायर, तो इनू असीं लिख सकते हैं 4 नू 2 दा स्क्वायर, यानी ऊपर की बन जाएगा 2 दा स्क्वायर, नीचे 2 माइनस एक्स दा स्क्वायर। इन्हें असीं इदां लिख सकते हैं 2 ओवर 2 माइनस एक्स दा होल स्क्वायर। हुण अगर असीं सॉरी होल स्क्वायर लिखना सी, ठीक है। हुण असीं अग्गों इनू की कह सकते हैं कि
1 ਬਾਏ x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2/2 ਮਾਈਨਸ x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਅਪਲਾਈਂਗ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡ, then square ਨਾਲ square root cut 1 by x is equals to 2/2 minus x, cross multiply करो 2x is equals to 2 minus x, then ਇਹ distance ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ squaring ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ प्लस माइनस, ठीक है। then ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ प्लस माइनस लिख ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, then 2 minus x is equals to 2x ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2x minus x is equals to 2, x is equals to 2। ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 2x is equals to plus ਦਾ 2 minus x ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ minus 2 minus x, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, -2 plus x, 2x minus x is equals to -2, x is equals to -2 आ गया एक तो। दूसरा इधर की आ रहा 2x plus x is equals to 2, 3x is equals to 2, x की वैल्यू की आ जाएगी 2/3। तो इदा मतलब की है कि जो डिस्टेंस है या तो फिर -2 आएगा या तो फिर 2/3 है। थानू तो पता है कि डिस्टेंस कदे भी नैगेटिव नहीं होंदा, कैन नैवर भी नैगेटिव, डिस्टेंस की आपां प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो फिर एक्चुअल अपना आंसर की होएगा x इज इक्वल्स टू 2/3। इत्थों की समझ आया कि जो चार्ज है ए पॉइंट तो किन्ने डिस्टेंस ते है 2/3 मीटर डिस्टेंस ते है, तो दूसरे वाले पॉइंट तो किन्ने डिस्टेंस ते है बी पॉइंट तो 2 - 2/3 यानी 6 - 2/3 यानी 4/3 मीटर ते है।